Hello everyone, I am Seema Khandelwal, chemistry educator. Welcome to the MK Jain Classes YouTube channel. Today we are going to discuss our topic electrochemical cell. Electrochemical cell, before doing this topic, we will see its history. Electrochemical term कहाँ से आई? तो we see that it comes from the electrochemistry. Now, electrochemistry क्या होती है? नेम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, रिलेवेंट टू इलेक्ट्रिसिटी. एंड केमिस्ट्री, अपनी केमिस्ट्री जिसमें हम रीड करते हैं केमिकल रिएक्शंस. ओके, नाउ व्हाई देयर इज नीड ऑफ टू लर्न द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आप देखो, आपकी डिवाइसेस जो आप यूज करते हो, आपका मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सब में क्या यूज करते हैं? बैटरी में क्या है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द chemical energy and chemical energy to the electrical energy. So the devices which convert this energy from one form to another, we call them cell. There are two types of cell. Cells कितने टाइप के होते हैं? Two types of cells are there. One is electrochemical cell. Electrochemical cell. And other type is electrolytic cell. Electrolytic cell. Now, what is the difference between electrochemical cell and electrolytic cell? See there, electrochemical cell converts chemical energy to the electrical energy. It converts chemical energy into electrical energy. Okay. Now, electrolytic cell, in this type of cell, electrical energy is converted to chemical energy. Now, in both that cells, which type of reactions we observe? See that one. See there, electrochemical cell. In this one, spontaneous reactions takes place. And electrolytic cell, non-spontaneous reactions are there. Non-spontaneous reactions are there. Now, what are spontaneous reactions? Spontaneous reaction जो खुद से होती है, सेल्फ, जिसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है. ये बिल्कुल वैसी है जैसे अपना बिल्कुल पढ़ाकू बच्चा जो बिल्कुल खुद से ही पढ़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा, कोई डांट पिटाई की जरूरत नहीं है जिसको. और नॉन स्पॉन्टेनियस, अब सारे के सारे पढ़े बच्चे तो पढ़ाकू होते नहीं है, जिनको हम पुश करते, लालच देते, चॉकलेट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तब जाके वो पढ़ते. तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है? आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और अगर डेली लाइफ में अपन एग्जांपल देखें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप घर की छत पे जाओ, एक बाल्टी वाटर डालो, क्या होगा? पानी नीचे आएगा. तो और यही पानी की बाल्टी आप जाके फर्श नीचे डालोगे तो क्या होगा? नीचे से ऊपर से तो जाने रहा. तो दैट द सिमिलर थिंग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो सेल्फ से होते हैं नेचर में, जो रिएक्शन खुद से हो रही है. नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होती, जहां हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल आपस में कंबाइन होंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा. जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम खुद से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब वो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड आगे प्रोसीड होगी. ओके, क्लियर दिस वन. अब हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, see the electrochemical cell. In this cell, which type of reaction takes place? Redox reactions. What? Redox reactions. Now, what is redox reaction? We all know that redox term come from the reduction plus oxidation. What is it? Reduction
plus oxidation. Yes, reduction plus oxidation. From reduction, RED term, RED, oxidation, OX for oxidation. Now, what is reduction and oxidation? Always keep in mind their reduction takes place at cathode and oxidation always takes place at anode. ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेनी है. Oxidation always take place at anode and reduction always take place at cathode. अब इसको लर्न करने की बहुत इजी और बहुत पॉपुलर टिप है. रिडक्शन को कैसे लर्न करते हैं? रिडक्शन फॉर रैडकेट, रैडकेट. एंड ऑक्सीडेशन को लर्न करने का क्या है? एनऑक्स, एनऑक्स. रेड फॉर रिडक्शन and cat for what? Cathode. Okay. NOx, N for anode and ox for oxidation. Okay, clear? So easily you can learn there. From radicate means reduction at cathode, NOx means anode where oxidation will takes place. Oxidation will take place. Okay. So this is the reaction takes place in the electrochemical cell. Now we will see its structure. Electrochemical cell, we design its structure. Electrochemical cell is also known as your galvanic cell or voltaic cell. Why we call galvanic cell? On the basis of scientist Galvani and Alessandro Volta, the name is given voltaic cell. Okay. Now here we will design the draw the structure of electrochemical cell, special type of electrochemical cell which was designed by the John Daniel. So his cell was the zinc and copper cell. So here we draw the structure of that one. In Daniel cell, we take two containers. It is the structure of Daniel cell. John Daniel has designed this type of electrochemical cell. In that we take two containers. Okay. In first one, we take the zinc sulfate solution. Okay. Here is zinc sulfate solution. Its concentration we are taking 1 m, standard concentration. And one rod, zinc rod, we will dip in it. Okay. And another container is, in another container we put the copper sulfate solution. We fill up with the copper sulfate solution here. Here these solutions are known as the electrolytes. What we call them? Here copper sulfate solution, copper sulfate electrolyte. Its concentration also 1 m solution. Okay. And in this one second container we dip the copper rod in it. And both the electrodes we connect with the wire. Okay, clear? Now look at the first container. Zinc sulfate solution is there, zinc rod is there. Okay, here copper rod is there. Now see the zinc metal is there, copper metal is there. अब जो अमीर होगा वो देगा, जो गरीब होगा वो लेगा. तो अब जिंक कैसा है? अमीर मेटल, एकदम से अमीर. तो इसका क्या नेचर है? ये जिंक जो है, जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये कन्वर्ट होगा आपका जिंक +2 आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे.
तो इस कंटेनर में क्या रिएक्शन चलेगी, जिंक आपका कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जिंक +2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जहां अभी आप रिएक्शन देखो, जिंक से जिंक +2 बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी जिंक रोड कैसे वर्क कर रहा है यहाँ, एज ए एनोड। व्हाट इज इट, एनोड। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, एन ऑक्स, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पर। और यहाँ है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना। अब देखो यहाँ जो ये जिंक रोड है, इसमें क्या हो रहा है, ये जितना भी जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल कन्वर्ट होता जा रहा है जिंक +2 आयन में, और सॉल्यूशन में जिंक 2+2 आयन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और रोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री बन रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्री होंगे तो वो क्या करेंगे, वो तो स्टेबल रहते नहीं, वो तो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना शुरू करेंगे, और नेक्स्ट जो कि हमने वायर से जोड़ रखा है, तो नेक्स्ट कंटेनर पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर के इलेक्ट्रोड पे आएंगे, तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भूखे बैठे, जैसे ये कॉपर आयंस, जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे इनको गेन करना शुरू करेंगे, और कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में। और यहाँ कॉपर मेटल, तो रिएक्शन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कॉपर +2 आयंस, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं रोड से, वो दोनों दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करते जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर मेटल में। तो कैथोड के ऊपर यहाँ कॉपर मेटल डिपॉजिट होने लग जाएगी, और इधर से जिंक आयन जो है सॉल्यूशन में जाने से ये धीरे धीरे, ये जो एनोड है आपका ये पतला होता जाएगा, और कैथोड जो है मोटा होता जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एक तो हम पुट करेंगे यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो हमें इसमें डिफ्लेक्शन नजर आएगा, 0 की जगह आपको कुछ कुछ डिजिट नजर आएगा, निडल मूव करेगी। या आप बल्ब भी पुट कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे तो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंटेनर में जो सेकंड कंटेनर है उसमें रिएक्शन क्या हो रही है, देखो, कॉपर आयन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग इनटू द कॉपर मेटल, यानी रिडक्शन हो रहा है। और अभी हमने क्या लर्न किया ट्रिक से, रैडकेट, यानी रिडक्शन जहाँ कहाँ होता है, कैथोड पर। तो यहाँ ये जो कॉपर की रोड है ये कैसे बिहेव करेगी, एज ए कैथोड, ओके। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम एनोड टू, हियर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और हम सभी को पता है करंट कैसे फ्लो होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू इट। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। पर आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि बल्ब तो बंद हो गया। अब इसका रीजन क्या है, इन फर्स्ट कंटेनर धीरे धीरे कॉपर मेल्ट होके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर Zn+2 चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड कंटेनर में कॉपर ये आयन गेन करेंगे, और यहाँ सल्फेट आयन बचे हुए रह जाएंगे, तो इम्बैलेंस हो जाएगा चार्जेस का, तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। अब इस चीज को कैसे हम मेंटेन करें कि हमारा बल्ब जो है ग्लो करता रहे, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं सॉल्ट ब्रिज, यही हम इंट्रोड्यूस करते हैं फिर सॉल्ट ब्रिज को। अब सॉल्ट ब्रिज का कैसे स्ट्रक्चर होता है, सॉल्ट ब्रिज होती है एक हमारी ग्लास की यू ट्यूब की शेप की, और जिसको हम बिल्कुल इन्वर्टेड इस तरह से यहाँ लगाएंगे, इन्वर्टेड फॉर्म में इसको पुट किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, यू शेप की ग्लास रोड है जिसको, और इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कंटेनर में क्या लेंगे, यहाँ हम बढ़ते हैं, इसमें कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, और ये सेमी सॉलिड टाइप का हम लिक्विड बनाते हैं। इस सेमी सॉलिड लिक्विड में क्या रहता है, अगर अगर या फिर ले सकते हैं जिलेटिन, ठीक है। तो इसमें हम भरते हैं, ये एक टाइप का सेमी सॉलिड बनाते हैं जिसके अंदर, अब इसका क्या बेनिफिट रहता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या वर्क है, देखो पोटेशियम और क्लोराइड आयन है, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, KCl ये देगा K+ आयन एंड Cl- आयन, ओके। अब नेगेटिव आयन है
तो ये आएंगे आपके जिंक रोड की तरफ, और ये Cl माइनस आयन इन जिंक से कंबाइन होके ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया था उसको बैलेंस करेंगे। इधर आएंगे आपके पोटेशियम आयन जो कि सल्फेट से कंबाइन होंगे और इन जो एक्स्ट्रा सल्फेट आयन से उनको न्यूट्रलाइज करें। तो सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों तरफ जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हो गया था उसको बैलेंस करना। और ये पूरा जिलेटिन में सेमी सॉलिड, यहाँ ग्लास बोल रहे थे, ये केमिकली इनर्ट होता है, ऐसे केमिकली कोई रिएक्शन नहीं करे बट न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। ओके, नाउ देन अनदर इन फिजिक्स हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में तो करंट फ्लो हो रहा है पर इंटरनल सर्किट भी कंप्लीट होगा तभी आपका पूरा सर्किट कंप्लीट। तो सॉल्ट ब्रिज एज ए इंटरनल सर्किट भी वर्क करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर आपका एनोड पर हो रहा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है आपका रिडक्शन। एनोड किसका बना है? जिंक रोड विद जिंक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट। आपका कैथोड किसका बना है? कॉपर रोड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें जो भी वोल्टेज आएगा वो हमें वोल्ट मीटर में वी कैन मेजर इट। सो दिस टाइप ऑफ, यहाँ देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जिससे आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। सो हियर आपका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दिस इज द टाइप, और ये डिजाइन किया था जॉन डैनियल ने उसी के नाम पर। अब ये तो पूरा स्ट्रक्चर है डायग्राम में, इसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हम इक्वेशन में जो लिखते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट। अभी तक हम इसको कंटेनर कंटेनर बोल रहे थे, अब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्या? जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है? जिंक विथ इट्स सॉल्यूशन, जिंक रोड विथ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। आपका रिडक्शन हाफ सेल क्या है? कॉपर रोड विथ इट्स कॉपर। अब हम इसका देखेंगे रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। वी राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन शॉर्ट फॉर्म हाउ वी रिप्रेजेंट। पहली बात तो जो फर्स्ट जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाँ, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेटल है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। जो भी मेटल आप ले रहे हो उसको रिप्रेजेंट करना है एम से। तो ये मेटल, और इसी का हम ऑक्सीडेशन फॉर्म बनाए तो मेटल whatever oxidation number is there we write like this। अब ये आयंस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम यहाँ साथ में लिखते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, रिडक्शन हाफ सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिडक्शन हाफ सेल, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जो भी मेटल है उसका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कन्वर्ट हो रहा है मेटल के सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ जो मेटल का आयन है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी साथ में लिखी रहती है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे कैसे? ऑलवेज राइट एनोड एट लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड एट राइट हैंड साइड। सो वी राइट डाउन लाइक दैट। अब यहाँ हमारा एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन क्या हो रही है? एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी अभी? जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू Zn प्लस 2, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई थी? कॉपर प्लस 2 आयंस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर मेटल। ओके, नाउ इसका रिप्रेजेंटेशन इस डेनियल सेल का हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जिंक सॉलिड vertical line to show the metal and its ion, zinc plus 2 ion, and here we will mention always the concentration, whatever molarity or concentration is there. Two vertical lines here shows the your salt bridge. Here copper plus 2 ions is concentration of the solution and copper metal.
This is the way how to represent the electrochemical cell. This representation for the Daniell cell. Daniell cell में जिसमें हम लेते हैं जिंक और कॉपर मेटल यूज करते हैं. ये वर्टिकल लाइन शो करता है मेटल जिस आयन में कन्वर्ट हो रहा है. टू वर्टिकल लाइन शोज द और सॉल्ट ब्रेस. Okay, now whatever potential difference between the metal rod and its electrolyte solution, that is known as the its electrode potential. And for copper metal and its electrolyte solution, copper sulfate solution, so it is reduction potential for the copper sulfate, and this is for oxidation potential for. अब जब दोनों को हाफ सेल को कंबाइन करते हैं तो overall whatever potential difference come from for the both the half cell, that is known as E cell. What we write for that one? E cell. E cell means electrode potential of cell. How we represent E cell? Always we write that electrode potential half cell reduction minus E oxidation. Okay, E cell total electrode potential for the cell, it is always equal to the reduction we write at the right hand side, and oxidation takes place at left hand side. So we can write this term as like this also, E right minus E left. E cell equal to this one, or in more short form we write generally E right minus E left. If we take the standard concentration and standard condition of temperature and pressure, then the E cell is not denoted by E naught cell. What we will write? E naught cell. E naught for reduction potential, E naught for oxidation potential. So this is the representation of E cell, how the electrochemical cell work, its structure, and how we represent. We have learned this part in this topic. I hope it is very beneficial for you. Thank you.